So class, very good morning to all, and as you know, we are discussing the fourth chapter, chemical bonding and molecular structure. And the same things we are going to proceed today. That means today we have a very important and a very beautiful theory. It's called VSEPR theory. That means valence shell electron pair repulsion theory. Yeah. अभी तक आपने देखा कि you have the lots of molecules, and we said that these molecules have this kind of shape, this kind of geometry. Clear? So let's start with the today thoughts. Thinking is very hard work. It's the same things we will apply these thoughts in our VSEPR theory. That means valence shell electron pair repulsion theory. So let's start with the theory. And before starting the theory, we will discuss with some molecules. Yeah, that means where we apply this VSEPR theory. Yeah, and what is the importance for this VSEPR theory for us? Clear? So let us start. You have, suppose you have the three molecules, and the three molecules is like that. The first you have CH4. What is CH4? We all know that this is methane. Second things you have, second molecule you have ammonia, and suppose third one you have H2O. Clear? And right now I introduce a new word here called the hybridization. Clear? In second chapter we also discuss a little bit about the hybridization and what is the hybridization and the how many orbitals are take part in hybridization. Yeah. So I am giving you a simple formula right now. So formula is like that: Z equal to 1/2 number of valence electron on central atom, here, plus negative charge if any present in your molecules, minus positive charge if any present, plus number of monovalent atom. Clear? So this is the formula for calculating Z. Clear? And Z is called hybridization simply, but hybridization is the next topic of in your NCERT. So we will discuss later on in a broad manner what the hybridization and how we calculate the hybridization. But right now we simply understood that a formula Z equal to half number of valence electron on central atom minus plus any negative charge if present in molecules, minus the positive charge if any present, plus number of monovalent atom. Okay. Now see that in the case of CH4, this is C, it's called the central atom. Okay. This is your central atom. Why? Because we all know that these all fours are attached surrounding to the central atom. ठीक है, और किसी भी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो एटम्स आपके अटैच्ड होंगे, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम लोग मोनोवैलेंट. ठीक है, मोनोवैलेंट का सिंपल मीन्स क्या होगा, जिनका वैलेंसी क्या होगा 1 होगा. ठीक है, जो क्या बना रहे होंगे आपका सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे. ठीक है, उन्हें मोनोवैलेंट कहेंगे हम लोग. नाउ सी हियर इन द केस ऑफ अमोनिया यू आर सीइंग दैट दिस हाइड्रोजन इज आल्सो मोनोवैलेंट एंड नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम. In the same case happen with the water H2O, that means O is the central atom and this H2 या H it's called number of monovalent. ठीक है, so now calculate the Z. ठीक है, Z निकालते हैं फिर देखते हैं आगे कहानी क्या होगा in the VSEPR. ठीक, now see that Z for CH4 half number of valence electron on central atom. ठीक है, CH4 आप निकाल रहे हैं. CH4 we see that, yeah, we know that what is the atomic number of carbon 6, electronic configuration 2 and 4. So that means the 4 is the valence electron. I told you earlier. ठीक है, काफी डिस्कस कर चुके थे हम लोग जब हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था कि वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंसेप्ट आया था आपके पास. पता है? ठीक है, अदरवाइज यू विल चेक द प्रीवियस वीडियोस. 4 plus you have any negative charge is in CH4, no negative charge. Any positive charge, no positive charge. Now see that plus number of monovalent atom. How many monovalent atom are? 4. So you have again 4. So it will have the 2 into 8 equal to 4. So value of Z is
4. So value of Z is 4. In the same case, for the ammonia NH3, we'll calculate Z. Nitrogen having the 7 atomic number, electronic configuration is 2 and 5. So 1 by 2, 5 plus number of monovalent 3. ठीक है. So see that 8 by 2, that means again it comes the 4. ठीक है. Now calculate Z for H2O. So again it will comes half O. O देखेंगे, चेक करेंगे. 8 you have atomic number, 2 and 6 is the electronic configuration, and 6 is called valence electron. So you have 6 plus number of monovalent. 2 H is here, so that thing here is 2. So you will see that again it's come the 4. Okay. So बच्चों remember the one thing here. If you have the value of Z 2, 3, 4, 5, 6, so you have the different hybridization. ठीक है. But if you have Z equal to 4, so I am giving you is that if you have Z equal to 4, so you have the hybridization is sp3. You have the hybridization sp3 hybridized orbital you have. ठीक है, यानी कि जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा. एंड रिमेंबर दैट द हाइब्रिडेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द सेंट्रल एटम. ठीक है, जिस सेंट्रल एटम से आपके जो मोनोवेलेंट अटैच्ड हुए हैं उसके लिए आप क्या निकालेंगे, हमेशा हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, दैट मीन इन द केस ऑफ अमोनिया यू हैव द sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन. ठीक है, एच हाइब्रिडाइज नहीं होगा, एच तो आपका क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट है जो अटैच्ड हुए हैं नाइट्रोजन का. ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है आपके पास, सेंट्रल एटम है. एंड हाइब्रिडेशन ऑलवेज हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड sp3. ठीक है, अब थोड़ी बहुत समझ लेते हैं यहाँ पे हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट कि sp3 क्या होगा. देखिए, इन सेकंड चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्बिटल. वी सेड दैट इन द केस ऑफ s यू हैव द वन ऑर्बिटल. ठीक है, और एक ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता था, 2. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ Z 4 है, तो हाइब्रिडेशन इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द s. ठीक है, अब 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे 1 + 3 लिख सकता हूँ. पहले तो ये सीख लीजिए कि हमारे पास था क्या हाइब्रिडेशन कंसेप्ट या ऑर्बिटल कंसेप्ट में. आपने कहा था जो s ऑर्बिटल था कितने, और या जो s था कितने ऑर्बिटल थे, 1. p में कितने हैं, 3, और d में कितने हैं, 5, और f में कितने थे, 7. ठीक है, ये कुछ नंबर ऑफ ऑर्बिटल थे आपके पास, 1, 3, 5 और 7. सो सी दैट इन द केस ऑफ s कितना इलेक्ट्रॉन आएगा भैया, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, बट ऑर्बिटल कितना है, 1. सो आपने क्या किया, 4 को डिवाइड किया 1 + 3, दैट मीन द 1 इज s एंड दिस 3 आर p. ठीक है, यानी कि ये कुछ कंडीशन होगी आपके पास बेटा, दिस वन एंड दिस टाइप ऑफ. ठीक है, ये s का हो गया, ये p का हो गया. s के कितने पार्टिसिपेट किए, 1. p ने कितने पार्टिसिपेट किए, 3. तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका, sp3 होगी. ठीक है, ये सारी बातें आएंगी वहां पे, बट अब फिलहाल इट इज क्लियर कि क्या हाइब्रिडेशन था आपके पास. नाउ दिस इज यू हैव हाइब्रिडेशन ऑफ sp3. ठीक है, इफ यू हैव sp3 हाइब्रिडेशन, तो आपका जो हाइब्रिडेशन होता है वो डिफाइन करेगा कि आपके मॉलिक्यूल्स का, आपके कंपाउंड्स का ज्योमेट्री क्या होगा, इसका शेप क्या होगा. ठीक हो गया, कौन डिफाइन करने वाला है, ये Z का वैल्यू डिफाइन करेगा कि आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा. दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन एंड दिस या टोटली डिपेंड ऑन Z. ठीक है, अब देखिए Z क्या है आपके पास, Z देखिए क्या है ये. Z को हम लोग बोलते हैं इट इज योर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. ठीक है, देखिए Z का मतलब क्या होगा, सिंपली Z का मतलब सिंपली आपके पास होगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. We all know that what is the bond pair? Bond pair are those pair, those electrons which take part in the chemical bond formation, and the lone pair means those electrons are not taking part in chemical bond formation. That is called lone pair. ठीक है, ये सारी बातें प्रीवियसली हमको पता है, bond pair and lone pair. Now check. I told you the value of Z is defined the geometry and the shape.
ठीक है, कैसे डिफाइन करेगा? देखिए जेड को आपने बोला बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. नाउ सी दैट व्हाट हैपन इन द केस ऑफ मीथेन. यू आर सीइंग दैट वैल्यू ऑफ जेड इज 4. यहां देखते हैं वैल्यू ऑफ जेड इज 4. ठीक, और यहां देखिए कि कार्बन के सराउंडिंग में कितने एटम अटैच्ड हैं? 4. तो 4 के 4 क्या है आपके? बॉन्ड पेयर हैं. तो ये 4 आपके पास क्या है? बॉन्ड पेयर. व्हाई आई एम सेइंग दैट बॉन्ड पेयर? बिकॉज कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है बेटा, टेट्रावैलेंट होता है. ठीक है, और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं आपका? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस जेड इक्वल टू 4 इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर. लोन पेयर तो दिख ही नहीं रहा हमें. ठीक है, लोन पेयर का मीन्स होता है द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सी दैट इन द केस ऑफ अमोनिया अगेन यू हैव जेड इक्वल टू 4. ठीक है, और ये 4 है क्या बच्चे? ये 4 है आपके पास द सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर. ठीक है, जेड क्या है आपके पास? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम आपके पास. नाउ सी दैट हियर इज यू आर सीइंग दैट दिस 3 इज बॉन्ड पेयर. सो यू कैन से दैट बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3. ठीक है, अब आपके पास जेड का वैल्यू तो 4 है, तो ए क्या है आपके पास? लोन पेयर. सो लोन पेयर इज 1. सो इन द केस ऑफ अमोनिया वी ऑल नो दैट द नाइट्रोजन कंटेन द 1 लोन पेयर. ठीक है, चलिए ये बात भी हो गया. नाउ कम H2O. H2O have again the same Z, that in the 4. सेम Z का वैल्यू आपके पास है. नाउ सी दैट Z इक्वल टू 4. सो यू कैन सी दैट only 2 hydrogen are attached to the oxygen. So bond pair 2. Bond pair 2 होगा in the case of H2O. And see that lone pair is also 2. ठीक है, क्योंकि जो जेड होता है बेटा वो क्या है आपके पास? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है. दिस द सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर. ठीक है, सो इट इज क्लियर. इन द केस ऑफ मीथेन यू हैव ओनली बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स द 4 बॉन्ड पेयर. इन द केस ऑफ अमोनिया यू हैव द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दैट मीन्स 3 लोन पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर एंड द 1 लोन पेयर यू हैव. इट्स क्लियर. एंड द केस ऑफ H2O यू हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. क्लियर. सो ऑल थिंग इज क्लियर. How to calculate Z? Z we calculate half number of valence electron in the central atom plus if any negative charge is present minus if any positive charge is present plus number of monovalent atom attached to central atom. ठीक है, so this is the formula to calculate Z. Now first of all we will decide the Z. What is the Z? ठीक है, now it's clear. So I'm rubbing this. So now come on the point. Point is that simply point is that if you have sp3, if you have Z equal to 4, so it will come sp3 hybridization. ठीक है, और in the case of sp3 hybridization you have geometry is टेट्राहेड्रल. ठीक है, अगर आपके पास Z इक्वल टू 4 होगा बेटा, ठीक है, यानी कि जो sp3 हाइब्रिडाइज आपके पास होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी आपका? टेट्राहेड्रल होगा. टेट्राहेड्रल का मीन्स क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम होगा उस पर 4 क्या लगे होंगे आपके? एटम्स अटैच्ड होंगे. उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल बोलेंगे. ठीक है, ये बात समझिए. उसे क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रल बोलेंगे. सपोज ये आपके पास क्या था? कार्बन था, तो कार्बन में आपने कहा सर दिस इज योर टेट्राहेड्रल, ऐसा कुछ था बेटा, दिस इज योर टेट्राहेड्रल. ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा टेट्राहेड्रल केस में. एंड सी दैट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल यू हैव बॉन्ड एंगल. हमने डिफाइन कर चुके हैं बॉन्ड एंगल. सी और एच के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा? ठीक है, याद रखिएगा जब भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा ज्योमेट्री इज योर टेट्राहेड्रल एंड द बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट. दिस इज योर बॉन्ड एंगल. And the bond angle is same for the every CH bond. That means हमेशा क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा. ठीक है, कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा. ठीक हो गया. So this is some conditions. Geometry is tetrahedral. ठीक है, जहां पर क्या होगा? Z इक्वल टू 4 होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो वहां बोलेंगे बेटा ज्योमेट्री क्या होगा आपका? टेट्राहेड्रल होगा. नाउ कम ऑन द पॉइंट. अमोनिया. अमोनिया इज द सेम. अमोनिया कुछ ऐसा बन गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 ही बॉन्ड है आपके पास. क्या है? 3 बॉन्ड आपके पास है. क्या है? 3 बॉन्ड आपके पास है. एंड एक क्या है? लोन पेयर है. तो लोन पेयर दिखाते कैसे हैं बेटा? दिस इज लोन पेयर.
ठीक है. एंड नाउ सी दैट व्हाट इज द बॉन्ड एंगल. अब बॉन्ड एंगल मैंने क्या बताया था, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड ज्योमेट्री इज द टेट्राहेड्रल, सो यू कैन सी दैट द बॉन्ड एंगल विल बी 109.28 मिनट. इतना क्या आएगा, बॉन्ड एंगल आएगा. ठीक है. दिस इज द प्रैक्टिकल वे, या दिस इज यू कैन से दैट द थ्योरेटिकल वे. अगर ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो क्या आना चाहिए बॉन्ड एंगल, अभी बताया था इतना डिग्री आना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट. बट what happen in the actual, the bond angle is comes in between n or h, it will comes 107 degree or 5 minute approximately it will comes. So yeah, to write down here only 107 degree. ठीक है. So this is 107. Clear? Now see that what happened. It's clear. So what happened in this case is, you see that your bond angle will be decreases from 109 to 107. This bond angle is decreases. क्यों decrease हो भैया, बात करेंगे. Now see that again you have the water. You see that central atom is O and only 2 bond pair you have. That 2 bond pair means the 1H is here and the 1H is here, and you check that you have the 2 lone pair. 2 lone pair, that means the 1 lone pair is this one and 1 lone pair is this one. Clear? So it is clear. And here you again see that the bond angle in between O and H is also equal to 109 degree 28 minute, but is also decrease and comes around 105 degree 4 minute. ठीक है. This is your actual conditions of the bond pair and the geometry. Geometry क्या होगा, here is also tetrahedral, here also tetrahedral. Now note down, then further we'll discuss about why it is happening. So class, it is clear that the H2O have the 2 lone pair. In the case of nitrogen, ammonia, you have the 1 lone pair, and here is no lone pair. That means all you have the bond pair is occur here. Okay? So you are saying that what will happen here, the same Z you have the 4, in the all 3 cases you have the same Z and the same hybridization, that means sp3 hybridization, and geometry is tetrahedral. ठीक है. ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल आया आपके पास. ठीक है. बट रिमेंबर दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स, हियर इज द एंगल 109.28 मिनट and 107 and 105 degree angle is here. So what is the reason behind it to having these different angles? ठीक है. एंगल्स में क्या है, चेंज आ रहा है आपके पास. सो व्हाट विल हैपन. ठीक है. इसी को डिफाइन करेगा VSEPR थ्योरी, दैट मीन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर. ठीक है. क्या हुआ आपके पास, देखिए, एक तो वो बात क्या कर रहा है कि वैलेंस सेल, यानी कि जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होगा वही टेक पार्ट करेगा. ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी. ठीक है. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, यू हैव द नेगेटिव चार्ज, यू हैव द नेगेटिव चार्ज, बोथ द नेगेटिव चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर. और कितना रिपेल करेगा, मैक्सिमम रिपेल करेगा जब तक वो स्टेबल ना हो जाए. ठीक है. रिपेल कब तक करेगा, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए. तो उससे आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द रिपल्शन थ्योरी. ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, दे हैव द सेम नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी रिपेल टू ईच अदर. क्लियर. सो सी दैट here you have VSEPR. Now you are seeing that here Z is same, geometry is the tetrahedral in the same cases, but the bond angle will be differ. And now you can say that you have 1 lone pair. देखिए, अब ये जो आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, देखिए, एक तो इसके अंदर रिपल्शन क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है. सेकंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है. एंड थर्ड यू हैव द बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन आपके पास हो रहा है. ठीक है. देखिए, बहुत सारे रिपल्सिव फोर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं. हियर इज नो रिपल्सिव फोर्स. ठीक है. यह कह सकते हैं एक ही रिपल्सिव फोर्स है. कैसा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपके पास है. बॉन्ड पेयर repulsion आपके पास in the case of methane, but in the case of ammonia you are saying that you have the bond pair repulsion, you have the lone pair bond pair repulsion.
ठीक है, दो तो इसके अंदर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ना कम टू वाटर, वाटर के अंदर क्या है, एक तो बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है, एंड सेकंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एंड थर्ड जो काम कर रहा होगा, थर्ड काम कर रहा है लोन पेयर रिपल्शन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। दैट इन द केस ऑफ वाटर यू हैव 3 रिपल्सिव फोर्सेस। यही रीजन है कि जो आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन होगा या रिपल्शन होगा, उसमें क्या करेगा, वो उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, दबाएगा, कंप्रेस करेगा, जिससे क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बट जो आपका लोन पेयर का एंगल होगा, ठीक है, दिस एंगल, जब आप इस एंगल की बात करोगे, लोन पेयर एंगल की बात करोगे, तो क्या है, आपके पास बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इस मैनर में, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा होगा, बट जब आप इनकी बात करोगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग वर्क करेंगे VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यही बताएगा आपको कि क्या होता है, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे। नाउ कम ए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, क्या है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट में, जिसे बोलते हैं शेप। देखो, दो बातें करते हैं हम लोग, एक ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री एंड सेकंड द शेप, ठीक है। दिस ज्योमेट्री एंड द शेप बोथ आर द डिफर टू ईच अदर। डिफर किस मैनर में होगा, देखिए ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री को आप बोलते हैं, ज्योमेट्री डिफाइन करेगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। आपके पास कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, वो डिफाइन करेगा ज्योमेट्री को, जिसे बोलते थे आप जेड। अभी निकाला आपने जेड, ठीक है, आपने कहा जेड इक्वल टू 4 था, तो मैंने कहा कैसा है भैया, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेरे पास है, ठीक है। जेड इक्वल टू 4 अगर टेट्राहेड्रल होगा आपके पास, ठीक है। अब बेटा देखिए, जो शेप होता है, शेप को कैसे डिफाइन करेंगे, शेप का मीन्स होता है सिंपल, अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल एटम आपके पास है, उस सेंट्रल एटम के जो अराउंड में अरेंजमेंट एटम का है, वो कैसा है। देखिए यहां पे देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, और अरेंजमेंट कैसा है, देखिए 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा है, टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मीन्स क्या होता है बेटा, 4 क्या कर रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन को अटैच करा रहे हैं विद द सेंट्रल एटम कार्बन, ठीक है। तो इस केस में शेप भी कैसा हो जाएगा, शेप इक्वल टू टेट्राहेड्रल, शेप इक्वल टेट्राहेड्रल। क्यों शेप टेट्राहेड्रल होगा, बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर। If there is no lone pair, that means geometry equal to shape. It is clear? If you have no lone pair, that means geometry is always equal to shape. Now come अमोनिया। अमोनिया के पास क्या है, 3 तो बेटा लोन पेयर है, 3 तो क्या है, बॉन्ड पेयर आपके पास है, 3 और लोन पेयर क्या है, 1, ठीक है। बट जब भी शेप डिफाइन करोगे, तो शेप को इस लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है, शेप को इस लोन पेयर से कोई मतलब नहीं, उसको किससे मतलब होगा, इस बॉन्ड पेयर से मतलब होगा। दैट मीन अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड में कैसा अरेंजमेंट है आपका एटम का, वो डिफाइन करेगा शेप को। देखिए कैसा है, अगर मैं इस लोन पेयर को छिपा दूं, सपोज आई हाइड दिस लोन पेयर, सो कैसा लग रहा है आपको, पिरामिड, ठीक है। किस किस्म का लग रहा है, पिरामिड किस्म का लग रहा है, तो इसका शेप होगा ट्रायगोनल पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप होगा इसका, ठीक है। ये शेप होगा जब आपके पास एक लोन पेयर है। बात करेंगे धीमे धीमे, पहले समझ लेंगे इसको क्या है। ना नेक्स्ट कम टू दी वाटर। वाटर के अगर मैं दोनों लोन पेयर को छिपा दूं, तो ये कंडीशन मिल रहा है, ये कंडीशन कैसी है, वी मिल रहा है आपको, उल्टा वी आपको मिल रहा है, या एंगुलर मिल रहा है आपको, एंगुलर, दिस इज एंगुलर, या इसको बोलते हैं हम लोग बैंड शेप, या इसको बोलेंगे हम लोग बैंड शेप, ठीक है। कैसा शेप होगा वाटर का, बैंड शेप होगा। बट ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। बट डिफरेंस कहां पर आया, डिफरेंस आपको मिल रहा है बाय ओनली टू हैविंग द लोन पेयर। लोन पेयर जैसे से आपको मिल रहे हैं, तो आपका जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो रहा है, चेंज होता हुआ जा रहा है, ठीक है। और इसी को डिफाइन करेगा
VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ रिमेंबर दैट, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पॉइंट, डिस्कसिंग ओनली वन पॉइंट हियर। द वन पॉइंट इज दैट, हम बात करें इंटरेक्शन का या लोन पेयर का इंटरेक्शन। देखिए आपके पास जहां भी लोन पेयर इंटरेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यहां देखिए लोन पेयर इंटरेक्शन है तो बॉन्ड एंगल बहुत बढ़ेगा, और इस लोन पेयर को क्या, इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, लोन पेयर कंप्रेस कर देगा। दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेस। ठीक है, फिर आएगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, ये ज्यादा होगा। देन आएगा सबसे लीस्ट जो होता है बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन। देखिए यहां पर केवल बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन है तो आपका बॉन्ड एंगल सेम था 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहां देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, और ड्यू टू हैविंग दिस लोन पेयर अबव। देखिए बड़ी दिक्कत आती है कि इस लोन पेयर को कहां पर दिखाएं हम लोग अभी। ठीक है, लोन पेयर कहां दिखाएंगे भैया, तीनों सेम है एटम आपके पास, कहीं भी दिखा दो, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। ठीक है, कहीं भी बात कर लो आप लोग। ठीक है, तो लोन पेयर का कोई टेंशन नहीं आएगा, कहां पर रखना है, क्या करना हम लोग। इट इज क्लियर। नाउ कम टू दिस पॉइंट। देखिए दो लोन पेयर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मॉलिक्यूल को और कंप्रेस करेगा, वेट रखेगा उसके ऊपर, वेट रखेगा तो इनके अंदर क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। लोन पेयर इंटरेक्शन क्या होता है, सॉरी रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इनका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा बट इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी कैसे काम करेगा, क्या करेगा, बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन एंड देन वी विल डिस्कस द postulates, the main point VSEPR theory. Now it is very clear where we apply the VSEPR theory. कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, फॉर determining geometry and the shape of molecules. ठीक है, and the bond angle also you can say that depend किस पर कर रहा है, जेड पे। जेड क्या था बेटा, जेड था आपके पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है, ये आपका ज्योमेट्री डिफाइन करेगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन।